us open our Bibles to Exodus chapter 3, everybody. और आइए हम अपने बाइबल को खोलेंगे निर्गमन इसका तीसरा अध्याय And let us read from verses 1 to verse 2. और आइए हम पढ़ेंगे वचन 1 और वचन 2। Exodus chapter 3, everyone. निर्गमन इसका तीसरा अध्याय And verses 1 to verse 2. और वचन 1 से वचन 2 तक। And Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian. And he led the flock to the backside of the desert and came to the mountain of God, even to Horeb. And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush. And he looked, and behold, and the bush burned with fire, and the bush was not consumed. अब मूसा अपने ससुर यित्रो नाम मिद्यान के याजक के भेड़ बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल के पिछले भाग में और होरेब तक ले गया और परमेश्वर के पर्वत के पास आ गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच से आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। Amen. Amen. Romans chapter 12, everybody, and verse 2, everyone. रोमियो की पत्री इसका 12वां अध्याय वचन 2 सभी जन। And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. और इस संसार से सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से परिवर्तित हो जाओ, जिससे तुम परमेश्वर की अच्छी और स्वीकार्य और परिपूर्ण इच्छा को सिद्ध कर पाओ। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। Thank you, Lord, my God, for the anointing of your presence that's in this place. धन्यवाद प्रभु, मैं परमेश्वर आपके अभिषेक की उपस्थिति को जो इस जगह में है। Beloved Holy Spirit of God, मेरे पवित्र आत्मा, मेरे we are परमेश्वर, greatly honored to be in your holy and awesome presence this beautiful morning. और आज इस सुंदर सुबह में आपके महान और पवित्र उपस्थिति में रहकर हम सचमुच सम्मानित हैं। Come, mighty प्रभु, comforter, come, mighty counselor, thou art welcome, Lord, thou art welcome in this place. अमान दिलासा देने वाले, अमान सलाह देने वाले, हम आपका इस जगह में स्वागत करते हैं प्रभु, हम आपका इस जगह में स्वागत करते हैं। Lead us, हमारे अगुवाई करो, speak to our lives, हमारे जिंदगियों से बातें help करो, us change, हमें मदद करो बदलने के लिए, help us be transformed, हमें मदद करो परिवर्तित होने के and लिए, glorify thy name in a mighty way. और आपका नाम महान तरीके से गौरवी करने के लिए हमें मदद करो, Help us to accept change in our lives. और हमें मदद करो परमेश्वर कि हम हमारे जिंदगी में बदलाव का स्वीकार करें। In Jesus' mighty name we pray and we ask. यीशु के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, इसलिए तू सुन। Amen. Amen. You may be seated, everybody. आप सभी जन बैठ सकते हो, And even as you sit down, I want you to tell your neighbor, और जैसे आप बैठ रहे हो मैं चाहता हूं कि आप आपके बाजू वाले से कहो, my blackened wick. मेरी जली हुई बत्ती, Come on, come on, come on, bolo. मेरी जली हुई बत्ती, My blackened wick. मेरी जली हुई बत्ती। Amen. आमेन। Amen. 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 How many are excited for today's move of the Holy Spirit? और आज पवित्र आत्मा जो कार्य करने वाला है उसके लिए कितने लोग उत्तेजित हैं? Amen. Amen. How many Amen. are excited for the word of God? और कितने लोग परमेश्वर के वचन के लिए उत्तेजित हैं? आमेन। Amen. How many are hungry? और कितने लोग भूखे हैं? Amen. आमेन, आमेन। When we sleep, जब हम सोते हैं we're exactly unaware of what's happening in our surroundings. उस वक्त हमें कुछ भी पता नहीं होता कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, That all depends upon how deep your sleep is. और ये उस पर निर्भर है कि आप कितने गहरे नींद में हो। You know, there are some people आपको पता है कुछ लोग हैं that when they sleep, कि जब वो सोते हैं they don't even know who sat on their body and went away. उन्हें ये भी पता नहीं चलता कि उनके शरीर पर कौन बैठकर चला गया। Some people sleep even while taking a bath. और कुछ लोग नहाते वक्त भी सोते हैं, Yeah, you know, some people sleep, you know, even when they go to the washroom. और कुछ लोग जब बाथरूम जाते हैं उस वक्त भी वो सो जाते They हैं, have sleep part 1 on their bed, and then they have sleep part 2 in the washroom. और उनका नींद भाग 1 जो है उनके बिस्तर पर होता है, और नींद भाग 2 जो होता है वो वॉशरूम में होता है। And you know, people love to sleep. How many people love to sleep? और लोगों को सोना पसंद है, कितने लोगों को सोना पसंद Show है? me your hands, everybody. आपके हाथ मुझे दिखाओ। Yeah, you know, some people sleep like a bed sheet on the bed. और कुछ लोग जो है बिस्तर पर बेडशीट की तरह सो जाते हैं, They know they पूरे फैल जाते हैं, you know, they're just like on the bed all over. वो पूरे बिस्तर पर पूरी तरह से फैल जाते हैं, सभी जगह पे You होते हैं। dance upon their body, still they will not know anyone danced and went away. आप उनके शरीर पे नाचो तो भी उन्हें पता नहीं चलेगा कि उनके शरीर पर कोई नाच कर चला गया। With me, it's different. मेरे साथ अलग है, When I sleep, I am very much awake in my sleep. और जब मैं सोता हूँ मेरे नींद में भी मैं बहुत जागा रहता हूँ। Unless I'm extremely tired and when I'm really closed off, I don't know what has happened around me. Otherwise, then I am completely alert.
जब तक मैं बहुत बुरी तरह से थक नहीं जाता है या फिर मैं पूरी तरह से खुद को बंद नहीं कर लेता, तब तक। नहीं तो जब मैं सोता हूँ मैं बहुत जागरूक रहता हूँ और मुझे पता रहता है कि मेरे आसपास क्या चलता है। Even if anyone moves in my bed, I come to know. अगर मेरे बिस्तर पे कोई हिलेगा भी तो मेरे भी बिस्तर पे नहीं, मेरे बेड में, बेडरूम में, सॉरी. मेरे बेडरूम में भी अगर कोई हिलेगा तो तुरंत मुझे पता चलता है कि कुछ तो हो रहा है And I wake up. और मैं जाग जाता हूँ। So, when people sleep, when we all sleep, और जब लोग सोते हैं और जब हम सभी जन सोते हैं, we are unaware of the surrounding. हमारे आसपास क्या हो रहा है हमें इस बात की इल्म ही नहीं होती है। And we just don't know what happened or what's going to happen. और हमें पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है या फिर क्या होने वाला है। People of God, परमेश्वर के लोगों, similarly is when we sleep in the Lord. वैसे ही होता है कि जब हम प्रभु में सो जाते हैं। That means I'm not talking about death. इसका मतलब ये नहीं कि मैं मौत के बारे में बात नहीं कर रहा। I'm talking about being lethargic in God. मैं इस बात के बारे में बात कर रहा हूँ कि हम परमेश्वर में आलसी हो जाते हैं। Yeah, means we stall in our prayers. इसका मतलब यह है कि हम हमारे दुआओं में रुक जाते हैं। We start becoming slower. हम धीमे हो जाते हैं। We start becoming lower. हम नीचे आने लगते हैं। We start, reducing our prayer time from 1 hour to 30 minutes, from 30 minutes to 15 minutes, from 15 minutes to only 10 minutes. हमारे दुआ का जो समय है वो 1 घंटे से आधा घंटा हो जाता है, आधे घंटे से 15 मिनट हो जाता है, 15 मिनट से केवल 10 मिनट में आ जाता है। And then we start, literally start reading the word of God only sometimes during the week. और फिर हम परमेश्वर का वचन जो है वो हफ्ते में कभी कभार पढ़ते हैं। There are two kinds of sleeping in God. देखो, प्रभु में, परमेश्वर में 2 तरीके के नींद होते हैं। The first one is पहला वाला है, is like when Adam slept in the presence of God and God removed Eve from his side. वो पहला ऐसा है कि जैसे आदम जो था वो परमेश्वर के उपस्थिति में सो गया और उस वक्त परमेश्वर ने उसमें से एक पसली निकाले, उसका ईव हवा को तैयार किया। This is the first kind of sleeping when you sleep in the presence of God. और ये पहले प्रकार का नींद है जहां पर आप परमेश्वर की उपस्थिति में सोते हो। That means you go into deep fellowship. इसका मतलब यह है कि आप गहरे सहभागिता में घुस जाते हो। That means you go into deep closeness with God. इसका मतलब यह है कि आप गहराइयों से परमेश्वर के करीब चले जाते हो। You are floating in the presence of God effortlessly. और आप बिना मेहनत के आप परमेश्वर की उपस्थिति में आराम से तैर रहे हो। Yeah, that is the first kind of sleeping. यह है पहले प्रकार का नींद। I said you are floating, you are soaring, you are floating, you are soaring in the presence of God is the first kind of sleep. मैंने कहा कि आप परमेश्वर के उपस्थिति में तैर रहे हो या फिर आप ऊपर तरंग रहे हो, यह है पहले प्रकार का नींद। That means in the presence of God you are high. इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में ऊंचे हो। You don't have to do anything there. आपको वहां पर कुछ भी करने की जरूरत You नहीं don't है। have to even pray in tongues. आपको वहां पर अन्य भाषा में भी दुआ करने की जरूरत नहीं You है। are just soaking in the presence of God. और बस वहां पर आप परमेश्वर की उपस्थिति को बस खुद में ग्रहण कर रहे हो और बस उसकी उपस्थिति को ग्रहण करते जा रहे हो। That's what is the highest level of fellowship. और इसे कहते हैं सहभागिता का शिखर। Now listen everybody. आप सभी जन सुनो। The second kind of sleeping is this. और दूसरे प्रकार का नींद ऐसा है, It's like the 10 virgins. वो 10 कुंवारियों की तरह, That they left and they took their lamps and they were on the way to meet the bridegroom. जहां पर उन्होंने अपने मशाले लिए और दूल्हे से मिलने के लिए वो निकल And पड़े। as they were on the way, और जैसे वो सफर में थे, as they were on the way, जैसे वो मार्ग में थे, the Bible says बाइबल कहता है that they all slumbered and slept. कि वो सभी जन ऊँघने लगे और सो गए। This is sleeping without God. और इसे कहते हैं परमेश्वर के बगैर सोना। That means it is away from God. इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर से दूर है। It is called as becoming sim in God. Sim. इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर में बहुत ही कम हो जाते हैं, Our prayer कम life. आँच में हो जाते हैं। Yes. Say it once again. और इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर में कम आँच में हो जाते हैं। Our prayer life decreases. हमारे प्रार्थना का जो समय है, जीवन है, वो कम हो जाता है। Our power life decreases. हमारा सामर्थ का जो जीवन है वो कम हो जाता है। We keep on commanding Satan in the name of Jesus, हम शैतान को आज्ञा देते रहते हैं यीशु के नाम में, and he doesn't budge. और वो वहां से बिल्कुल नहीं हिलता, He doesn't go away. वो नहीं चला जाता। Why? क्यों? Because he knows
knows क्योंकि वो जानता है we and he are friends. कि वो और हम जो है वो दोस्त है। Yeah. हाँ। We are just doing a drama हम बस एक नाटक कर रहे हैं to command Satan in the name of Jesus. कि शैतान को यीशु के नाम में आज्ञा दे But रहे हैं, actually Satan tells in his heart, लेकिन देखा गया तो शैतान उसके दिल में कहता है he is my friend. ये तो मेरा दोस्त है, I will not go. मैं तो नहीं जाऊंगा। The name of Jesus has power. और यीशु के नाम में सामर्थ है। Yeah. हाँ। But it all depends on who is taking the name. लेकिन ये इस चीज पर निर्भर है कि कौन उसका नाम ले रहा है। If आमीन। I 1 week have a gala time with Satan अगर एक हफ्ता भर मैं शैतान के साथ मजे उड़ाता हूँ and I come to church and I command in the name of Jesus, और मैं कलीसिया में आता हूँ और यीशु के नाम में मैं आज्ञा दूंगा, Satan, get out! शैतान निकल जाओ In Jesus' name! यीशु के नाम में। He will laugh. वो हंसेगा। I know you're joking, right? मुझे पता है तुम मजाक कर रहा है ना। And we will say in our heart, और हम हमारे दिल में कहेंगे wait down, I'm coming. नीचे रुक, मैं आ रहा हूँ। People of God, परमेश्वर के लोगों, listen everybody. सभी जन सुनो, When we simmer in God, जब हम परमेश्वर में कम आंच पर हो जाते हैं, you know, we start, actually it's called as sleeping. Tell your neighbor sleeping. और इसे कहते हैं सोना। चलो आपके बाजू वाले से कहो सोना। Bolo, sona. सोना या फिर Once सो again, जाना। सो जाना बोलो. सो जाना। सो जाना. सो जाना। परमेश्वर के उपस्थिति के बगैर जब हम सोते हैं उसको कहते हैं परमेश्वर में धीमी आंच पे आना. The fire has gone low. जो अग्नि है, जो ज्वाला है वो कम हो चुका है। Let's open our Bibles, everybody, to Matthew 25 and verses 6 to verse 7. Matthew 25 verses 6 to verse 7. आइए हम बाइबल खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार इसका 25वां अध्याय वचन 6 और वचन 7। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 25वां अध्याय वचन 6 और वचन 7। And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. और आधी रात को चीख सुनाई दी कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए बाहर चलो। तब वे सभी कुंवारियां उठकर अपने मशाले ठीक करने लगी। I want Sunu to just shout once again loudly. You know, like this is come on, this is you and me. देखो, कल्पना करो कि ये पास्टर जो है वो आप और हम सभी जन हैं, और यहाँ पर और आधी रात को चीख सुनाई दी कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए बाहर चलो। This is exactly what happened. और ऐसे ही वहां पर हुआ। Now listen everybody. अब सभी जन सुनो। When they all arose, जब वो सब उठ गए, so listen, let me just clear one step before that. सुनो, आगे बढ़ने से पहले एक कदम मैं पहले साफ करता हूँ। Tell your neighbor, we are all humans. Come on. चलो आप आपके बाजू वाले से कहो हम सब इंसान हैं। बोलो. हम सब इंसान हैं। जोर से बोलो बाजू. हम सभी जन इंसान हैं। फिर से एक बार बोलो. हम सभी इंसान हैं। आपण सगळे माणसं आहोत बोला. अपन सगळे माणसं आहोत। या पुन्हा एकदा बोला. अपन सगळे माणसं आहोत। Now tell your neighbor. अब आपके बाजू वाले से कहो Don't give excuses. कारण मत दो। बोलो. कारण मत दो। फिर से एक बार बोलो जोर से. कारण मत दो। Yeah, you know, we say, I'm a human. हाँ, हम कहते हैं मैं तो इंसान हूँ। I've got license to sin. और मेरे पास पाप करने का लाइसेंस है। कारण मी माणूस है ना. This become a famous dialogue. और ये तो बहुत ही मशहूर डायलॉग बन चुका है। After some of my messages, people have taken this dialogue. और मेरे कुछ संदेश देने के बाद लोगों ने ये डायलॉग ले लिया है। मी तो माणूस है ना, म्हणून मी पाप करणार. मैं तो इंसान हूं ना, मैं तो पाप करूंगा। इनके सिर पे ऊपर स्टैंप मारो पापी, नहीं तो टैटू निकालो पापी, हमेशा के लिए नीचे रखो बड़े अक्षरों में, हमेशा के लिए. Tell your neighbor, don't give excuses. आपके बाजू वाले से कहो कारण मत दो। बोलो. कारण मत दो। हाँ तू इंसान है. बोलो. हाँ तू इंसान है। बोलो बाजाले का खमा. हाँ तू इंसान है। लेकिन तेरे इसी इंसान के बर्तन में तेरे को पवित्र आत्मा दिया है परमेश्वर ने. कमाल. कोई आलतू फालतू कारण देने का नहीं. बोलो बाजाले का. कोई आलतू फालतू कारण देने का नहीं। बोलो जोर से. कोई आलतू फालतू कारण देने का नहीं। हाँ। अगर नर्क जाना चाहता है तो कारण दे. बोलो. अगर नर्क जाना चाहता है तो कारण दे। बोलो बाजाले को. अगर नर्क जाना चाहता है तो कारण दे। Yeah. If Jesus can expect from Peter, James and John to stay awake and pray,
अगर यीशु पतरस यूहन्ना और याकूब से ये अपेक्षा रख सकता है कि वो जागरूक रहकर दुआ करेंगे, then let me tell everybody, तो मुझे आप सभी को बताने दो, he expects us not to sleep in the time of disaster. और वो हमसे अपेक्षा करता है कि समस्या के समय हम नहीं सोए। कोई आमेन बोलेगा आमेन। क्या? आमेन। समस्या आने से पहले या समस्या आने के बाद भी हम नहीं सोएंगे, ये यीशु मसीह की अपेक्षा हमसे है। कोई जोर से आमेन बोलेगा? आमेन। Give the Lord a mighty hand of praise. So, saints of God, तो परमेश्वर के लोगों, you know, these people began to sleep. और ये लोग सोने लगे। Yeah. हाँ, And when they were sleeping, और जब वो सो रहे थे, listen everybody, whenever anybody sleeps in God, सभी जन सुनो, जब कोई परमेश्वर में सो जाता है, that means his speed, his walk with God is diminishing. इसका मतलब यह है कि उसकी जो रफ्तार है, उसका जो परमेश्वर में चलना है, ये कम होते जा रहा है। His power is diminishing. उसका सामर्थ्य है वो कम होते His जा रहा prayer है। life is going low. उसकी प्रार्थना का जो जीवन है वो कम होते जा रहा है। And let me tell everybody, और मुझे आप सभी को बताने दो, listen everybody, सभी जन सुनो, that person is going away from God because his prayer life is reducing. वो व्यक्ति जो है वो परमेश्वर से दूर जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके प्रार्थना का जो समय, वो जीवन है, वो कम होते जा रहा Now है। listen everybody. आप सभी जन सुनो, But when they were sleeping, लेकिन जब वे सो रहे थे, something was happening with their lamps. उनके मशालों के साथ कुछ तो हो रहा था। बोलो बाजू वाले को, उनके मशालों के साथ बोलो, उनके मशालों के साथ कुछ तो हो रहा था। कुछ तो हो रहा था। फिर से एक बार बोलो, उनके मशालों के साथ कुछ तो हो रहा था। फिर से एक बार बोलो, उनके मशालों के साथ कुछ तो हो रहा था। या हाँ, अब बोलो बाजू वाले को, तेरे मशाल के साथ भी कुछ तो हो रहा है। बोलो, तेरे मशाल के साथ भी कुछ तो हो रहा है। something is happening even with your lamp. Come on, आपके मशाल के साथ कुछ हो रहा है। बोलो, आपके मशाल के साथ कुछ हो रहा है। you know your lamps don't take a holiday. देखो, आपके मशाले जो है वो छुट्टी नहीं लेते। Like for example, you know, this is you, उदाहरण के तौर पर कि मैं, आप, हम सब है, and this is your mashal, this is your lamp. और ये आपकी मशाल है। And when you are praying, और जब आप दुआ कर रहे हो full power, पूरे सामर्थ्य के come on, साथ, start praying in full power. Oh, and in your lamp, और आपके मशाल में, oh, and as you start falling asleep, और जैसे आप उन सोने लगते हैं, सो रहा है, no, but I will still keep burning. और फिर भी मैं जलता रहूंगा। No, doesn't happen this way. नहीं, ऐसा नहीं होता। In fact, it happens this way. देखा गया तो ऐसा होता है। Come on, start praying loudly. Come on. When your flames are going to die. आपका जो ज्वाला है, आप में जो मशाल जो है, वो भी बुझ जाएंगे। Don't expect the Holy Ghost to pump in fire. देखो, पवित्र आत्मा Wait, से, let me complete the sentence. Do not expect the Holy Spirit to pump in fire in your wicks when you are not praying. देखो, पवित्र आत्मा से ये अपेक्षा मत रखो कि आपके बत्ती में वो ज्वाला प्रदान करेगा या फिर वो पंप करेगा जब आप सो रहे हो। Tell your neighbor, आपके it doesn't happen this way. Come on. आपके बाजू वाले से कहो, ऐसा नहीं होता। बोलो, ऐसा नहीं होता। many people feel बहुत लोगों को लगता है that when I will lower in God, कि जब मैं प्रभु में कम हो जाऊंगा, the Holy Ghost will keep my fire burning. पवित्र आत्मा जो है मेरे अग्नि को जलाए रखेगा। Tell your neighbor, no. आपके बाजू वाले से कहो, नहीं, बोलो, नहीं। for the fire of the Holy Ghost to keep on burning in your life, आपके जिंदगी में पवित्र आत्मा की जो अग्नि है वो जलते रहने के लिए you need to be on your knees. आपको आपके घुटने पर रहना जरूरी है। आमेन। कोई जोर से आमेन बोलेगा क्या? आमेन। So when these 10 virgins arose, तो जब ये 10 कुंवारियां उठे,
The first thing that they did was जो सबसे पहली चीज उन्होंने की वो ये है, their focus went on their lamps. उनका ध्यान जो है उनके मशालों पर गया. From the sleep नींद से on the lamps. उनके मशालों पर. Let's read that verse 7, everybody. देखो आइए हम वचन 7 पढ़ेंगे. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशाले ठीक करने लगी. Because they knew one thing. क्योंकि वो एक चीज जानते थे. The relationship between the marriage and the lamps. वो रिश्ता उस शादी में और उस मशालों के बीच में जो था वो जानते थे. Amen. Amen. They knew it. वो ये जानते थे. If we have the lamps, we are in the marriage. अगर हमारे पास मशाले हैं तो ही हम शादी में हैं. कोई amen बोलेगा क्या? Come on. कोई Amen. amen. So the first thing, they did not wipe their faces. तो सबसे पहली चीज उन्होंने उनके चेहरे नहीं धोए. They didn't do their lipstick. उन्होंने उनका लिपस्टिक नहीं किया. They didn't put their eyeliners. उन्होंने उनके आईलाइनर नहीं लगाए. They didn't put their kajals. उन्होंने उनके काजल नहीं They लगाए. didn't put their earrings. उन्होंने उनके इयरिंग नहीं लगाए. They didn't check. They didn't know their dresses. उन्होंने ड्रेसेस नहीं देखे. The first thing that they did was लेकिन सबसे पहली चीज उन्होंने की वो ये है, they checked their lamps. उन्होंने उनके मशाले तराशे. कोई amen बोलेगा क्या? Amen. They checked their lamps. उन्होंने उनके मशाले देखे. Amen. आमेन. कोई amen बोलेगा? आमेन. The first thing. पहली चीज. Tell your neighbor, the first thing. आपके बाजू वाले से कहो पहली चीज. बोलो. पहली चीज. Even the foolish. मूर्ख भी While they were on the journey, जब वे उनके सफर में थे, the foolish did not have first God in their lives. और मूर्खों के जिंदगी में परमेश्वर पहला नहीं था. Yeah. हाँ. But they were still on the journey. लेकिन फिर भी वो सफर में But the थे. moment they woke up this time, लेकिन जैसे इस बार वे उठे, the first thing, जो सबसे पहली चीज, बोलो बाजू वाले को, जो सबसे पहली चीज, जो सबसे पहली चीज, पहली चीज बोलो, पहली चीज, they checked their lamps. उन्होंने उनके मशालों को देखा. Because they knew, क्योंकि वो जानते थे, no lamps, no entry. मशाल नहीं, एंट्री नहीं. जोर से, come on, come Amen. on, come on, come on. आमेन, आमेन. That means, इसका अर्थ यह है after the cry, कि उस चीख के बाद suddenly, अचानक से, Matthew 6:33 became their life. और मत्ती रचित सुसमाचार 6 और 33वां वचन उनकी जिंदगी बन गई. And that was, और वो ये है seek ye first the kingdom of God. कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो. कोई जोर से आमीन चिल्लाएगा क्या? आमेन. Suddenly, अचानक से, चला आता वटणीवर या, चला आता लाईनीवर या, चला आता काही पण कुछ भी करो लेकिन लाइन पे आ जाओ बाबा, सीधा हो जाओ. अभी सीधा हो जाओ क्योंकि अभी टाइम पास करने का कुछ फायदा नहीं है. अभी इज्जत में चलो लॉर्ड में. आमेन. एक दूसरे को बोलो, परमेश्वर में आखिरी मोमेंट पे कुछ करना कुछ फायदे का नहीं होता. बोलो परमेश्वर में, बोलो परमेश्वर में, परमेश्वर में आखिरी क्षण को, आखिरी क्षण को तैयार होना चलता नहीं है, चलता नहीं है. Many people have a habit like me. बहुत लोगों को मेरी तरह आदत है. They don't study the whole year. पर साल भर वो पढ़ते नहीं. They will keep on watching movies. वो साल भर वो पिक्चर देखते रहेंगे. They will keep on watching, various cartoons. वो अलग अलग कार्टून देखते रहेंगे. Serials. सीरियल देखते रहेंगे. They will keep on following pop stars and rock stars. और वो पॉप स्टार और रॉक स्टार के पीछे चलते रहेंगे. They will keep on, copying the world and the fashion and everything. और इस दुनिया की नकल करेंगे और जो फैशन और जो सब कुछ चल रहा है उसकी नकल वो उतारेंगे. They are just like me because I was the same. वो मेरी तरह है. क्यों? क्योंकि मैं भी ऐसे ही था. And when the exam comes, और जब परीक्षा आती है, some people are good, better than me. और कुछ लोग मेरे से बेहतर है. At least 2 months before they start studying, Deepak. और कम से कम 2 महीने पहले ही वो पढ़ाई शुरू करते हैं, दीपक. But some people are just like me. लेकिन कुछ लोग मेरी तरह ही है. Even 2 months before they will not study. 2 महीने पहले भी वो पढ़ाई नहीं करेंगे. And they will wait till next day morning for exam. और एग्जाम के अगले दिन सुबह तक वो रुके रहेंगे. And when the paper is there next day morning, और जब अगले दिन सुबह पेपर है उस वक्त, मम्मी पुस्तक कुठे आहे? Where is the book? किताब किधर है? कोणतं पुस्तक? अगं मम्मी त्याच्यात ते होतं ना त्याचे पैशाचे फोटो तर बघ. अच्छा ते मोठं? हा मोठं ते अरुंद. हा ते अरुंद. अच्छा त्याने पुस्तक असे पानं बाहेर आले होते. हा तेच
त्यावरती पैशाचा फोटो होतो, हा त्यावरती मोदीचं चित्र होतं, हा हा तेच ते कुठे येते, हा ते फेकलं ना काल रात्री. म्हणालं भंगारच होतं ते, रद्दी होती, चांगलं जाड होतं, म्हणाल रद्दी चांगले पैसे मिळतील, दिलं रद्दीवाल्याला 5 रुपये मिळाले. दिला अगं पेपर आहे. पण नक्की तेच विषय आहे का? टाइम टेबल पाहिलं का? नाही, टाइम टेबल कुठे आहे? यू नो सम पीपल आर लाइक मी. और कुछ लोग मेरी तरह होते हैं. So the same habit comes in the Lord. तो यही आदत परमेश्वर में भी आ जाती है. Yeah. हाँ, रैप्चर को टाइम है. धमाल करो, है कि नहीं? स्वर्ग आरोहण को बहुत टाइम है बाप, क्या टेंशन है एंजॉय करने का, है कि नहीं? दुआ नहीं करने का, बाइबल रीडिंग नहीं करने का, मस्त टाइम पास करने का. रैप्चर के एक दिन पहले स्वर्गदूत आके मेरे को बोलेगा तुतारी कब बजने वाला है, पेपर लीक होगा, और फिर वो रात को मैं जैसा बैठेगा ना दुआ में, ऐसा तानेगा, क्या बोलूं कैसा तानेगा, ऐसा तानेगा कि एक रात में पवित्र आत्मा भर के डायरेक्ट इधर, और सुबह जैसा लॉर्ड तुतारी बजाएगा चेंज, बदलाव. एक दूसरे को बोलो लॉर्ड में ऐसा नहीं होता है. बोलो लॉर्ड में ऐसा नहीं होता है. फिर से एक बार बोलो, लॉर्ड में ऐसा नहीं होता है. फिर से एक बार बोलो, लॉर्ड में ऐसा नहीं होता है. क्योंकि स्वर्गदूत पेपर लीक नहीं करते. बोलो आवाज वाले को, क्योंकि स्वर्गदूत पेपर लीक नहीं करते. फिर से एक बार, क्योंकि स्वर्गदूत पेपर लीक नहीं करते. कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? आमीन. Come on, people of God. चलो परमेश्वर के लोगों, Listen everybody. सभी जन सुनो. So these 10 virgins all arose and began to trim their lamps. तो ये सभी 10 कुंवारियां जो ये उठे और अपने मशाले ठीक करने लगे. Listen everybody. अब सभी जन सुनो. In the Lord, प्रभु में you can't afford a black wick. एक कालिक लगी हुई जो बत्ती है, इस ऐसा आप नहीं रख सकते. Yeah, I repeat once again. अब मैं फिर एक बार दोहराता हूँ. In the Lord, प्रभु में you can't afford a black wick. एक जली हुई बत्ती आप नहीं रख सकते. Yeah, फिर से एक बार जोर से बोलो, जली हुई बत्ती बोलो. जली हुई बत्ती. Yeah. In the tabernacle of Moses, और मूसा के निवास मंडप में when the Lord told them to make the 7 candlesticks, जब प्रभु ने उन्हें बताया कि वो 7 समय जो है वो बनाना है, उन्हें सात दीप स्तंभ, 7 दीप स्तंभ बनाना है, उस वक्त they were instructed very specifically उन्हें बहुत विशेष तरीके से बताया गया था to keep an eye on the fire. कि उस अग्नि पर आपको ध्यान रखना है. No black soot was allowed. वो बत्ती जो है बिल्कुल भी जलनी नहीं चाहिए. Yeah, it has to burn, उसे जलना है but not to become black. लेकिन काला नहीं होना चाहिए, Yeah, या फिर पूरी तरह से जल नहीं जाना चाहिए. yeah, जल के राख नहीं होनी चाहिए. So the priests were instructed specifically जो तो याजक है उन्हें विशेष तरीके से बताया गया था to keep trimming the wick. कि उस बत्ती को उन्हें छाटते रहना है. As long as the lamp burnt, जब तक वो 7 दीप स्तंभ जो है जलते रहेंगे, they had to keep trimming. Tell your उन्हें- neighbor trimming. उन्हें उसे छाटना पड़ता था. आपके बोलो। बाजू वाले से कहो छाटना पड़ता बोलो, था. छाटना पड़ेगा, छाटना पड़ेगा. छाटना पड़ेगा, छाटना पड़ेगा. छाटना पड़ता था. बोलो, छाटना पड़ता था. ध्यान रखना पड़ता था. बोलो, ध्यान रखना पड़ता था. आंखें उस दीप स्तंभ पर लगाए रखनी पड़ती थी. आमेन. You can't sleep, you know. Oh, let it burn. I'll take a nap for 5 hours and then get up. देखो आप सो नहीं सकते. हाँ कि चलो वो दीप स्तंभ जो है वो जलते रहेंगे 5 घंटे के लिए, मैं सो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए. और जब आग कम हो जाए मेरे को उठा रे बाबा. No. नहीं. Tell your neighbor you can't do that. आपके बाजू वाले से कहो आप ऐसा नहीं कर सकते. बोलो. आप ऐसा नहीं कर सकते. So saints of God, तो परमेश्वर के लोगों, they had to keep an eye on the wicks. उन्हें उनका पूरा ध्यान उस बत्ती पर ही रखनी पड़ती थी. The similar thing happened when God visited Moses. और वैसे ही हुआ जब परमेश्वर ने मूसा से मुलाकात की. The Bible states in Exodus chapter 3, everybody, and verse 2, बाइबल कहता है निर्गमन इसका 3 अध्याय वचन 2 में, and the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush, and he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच से
आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। People of God, परमेश्वर के लोगों, the bush kept on burning. वो झाड़ी जो है वो जलती ही रही That's what attracted Moses' attention. और इसी वजह से मूसा का जो ध्यान है उस दिशा में आकर्षित हुआ। Now what I'm going to say is going to shock you. और अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आपको धक्का लगेगा। Are you ready, everybody? क्या आप सभी जन तैयार हो? You know why people in your family are not coming to the Lord? आपको पता है कि आपके परिवार के लोग परमेश्वर में क्यों नहीं आ रहे हैं? Because your bushes are burnt out. क्योंकि आपके झाड़ियां जो है वो जलकर भस्म हो गए हैं। Yeah. हाँ, They cannot see the light of God burning. वो परमेश्वर के प्रकाश को जलते हुए देख ही नहीं सकते। Why did Moses go to the bush? मूसा उस झाड़ी के पास क्यों गया? Because it kept on burning. क्योंकि वो जलता रहा। He understood वो समझ गया the size of the bush is so much. कि वो झाड़ी जो है इतनी बड़ी है, If it's on fire, अगर वो जल रही है max to max 15 minutes, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, half an hour, आधा घंटा, 1 hour, 1 घंटा, it should become ash. वो तो राख होना चाहिए। आमेन। Come on, am I talking to somebody? चलो, क्या मैं किसी के साथ बात कर रहा हूं? Amen. आमेन। But when he saw, लेकिन जब उसने देखा, अरे ये क्या है? ये जलते ही जा रहा है. It just keeps on burning, ये तो बस जलते ही जा रहा है, but not getting extinguished, not getting consumed. लेकिन ये बुझ नहीं जा रहा, पूरी तरह से भस्म नहीं हो रहा है। He was pulled to that sight. वो उस दृश्य की तरफ खींचा गया। कोई आमेन बोलेगा? आमेन। खींचा गया, बोलो जोर से. खींचा गया। In our lives, we are the bushes of God. और हमारे जिंदगी में हम परमेश्वर के झाड़ी हैं। We are the bushes in our families. हमारे परिवार में हम झाड़ी है। But look at our lives. लेकिन हमारे जिंदगी के पास देखो, The fire is no more burning in many people's lives. और हम बहुत सारे लोगों के जिंदगी में अब अग्नि जो है वो जली नहीं रही है। Not only that much, उतना ही नहीं, some people are consumed. कुछ लोग तो भस्म हो गए हैं। Ash. राख। Who will your family go to looking at? और आपके परिवार के लोग किसके पास देखकर जाएंगे? Yeah. हाँ, आपके घर में यीशु मसीह की जोत है कौन? कि जिसके पास देखकर आपके परिवार के लोग कलीसिया से आएंगे। किसके पास देखेंगे? जब वो हमारे जिंदगी को देखते वो बाइबल देखते, जब हमारे जिंदगी को देखते हैं तो वो यीशु मसीह को देखते। हमारे जिंदगी के द्वारा उनको यीशु मसीह समझ में आता है, क्योंकि वो बाइबल नहीं पढ़ते हैं। आपके घर वाले बाइबल नहीं पढ़ते, वो पढ़ते हैं आपकी जिंदगी, और आपकी जिंदगी के द्वारा आप उन्हें यह दिखाते हो कि मेरा यीशु कैसा है। और आपको देख के, हमें देख के कोई यीशु में आना नहीं चाहेगा। कोई आमेन प्यार से चिल्ला के बोलेगा? आमेन। मैंने बोला प्यार से चिल्ला के बोलेगा? आमेन। मैंने बोला प्यार से चिल्ला के बोलेगा? आमेन। कोई यीशु में आना नहीं चाहेगा, क्योंकि हम हमारे लफड़ों को जानते। We know our timbers. हम हमारे लफड़ों को जानते हैं। Very soon my message is going to come. I am the Noah of my family. और बहुत जल्द मेरा एक संदेश आने वाला है, मैं मेरे परिवार का नूह हूँ। Amen. आमेन। So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, they began to trim their lamps. वो उनके मशाले ठीक करने लगे। Now listen everybody. अब सब जन सुनो। Why? क्यों? Because blackened wick is not allowed. क्योंकि जली हुई बत्ती इसका परवाना है ही नहीं। Because blackened wick produces black smoke. क्योंकि जली हुई बत्ती से काला धुआं निकलता है, It is not good. और ये अच्छा नहीं है। Saints of God, परमेश्वर के संतगणों, when you are walking in the Lord, जब आप प्रभु में चल रहे हो, today are we emitting black soot? क्या आज के तारीख में हम काला धुआं अपने जिंदगी से छोड़ रहे हैं? Let's open our Bibles to Hebrews chapter 6, everybody.
आइए हम अपने बाइबल को खोलेंगे इब्रानियों की पत्री इसका 6वां अध्याय, Hebrews chapter 6 इब्रानियों की पत्री इसका 6वां अध्याय and verses 4 onwards. और वचन 4 से आगे। Listen everyone. सभी जन सुनो। When you keep on sleeping, जब आप सोते ही रहते हो, when you sleep and keep on sleeping, जब आप सोते हो और सोते ही रहते हो, this is what is going to happen in our lives. ये हमारे जिंदगी में होने वाला है। Hebrews 6 everybody और इब्रानी की पत्री इसका 6वां अध्याय and verses 4 to verse 6 और everyone. वचन 4 से वचन 6 तक। For it is impossible for those who are once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come. Read 4 and 5. क्योंकि उन लोगों के लिए असंभव है जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन और आने वाले युग के सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। Verse 6 everyone says. वचन Verse 6 6 the word of the Lord says. वचन 6 में परमेश्वर का वचन कहता है, If they shall fall away, यदि वे भटक जाए, to renew them again unto repentance, उन्हें पश्चाताप के लिए फिर नया बनाना, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh and put him to an open shame. और उन्हें पश्चाताप के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए क्रूस पर चढ़ाते हैं और खुले में उस पर कलंक लगाते हैं। Yeah. हाँ, Once you are in the Lord, एक बार आप प्रभु में हो, and when you compromise with this world in your lives और जब आपके जिंदगी में आप इस दुनिया के साथ समझौता करते हो and start following the world, और इस दुनिया के पीछे चले जाते हो, listen everybody, सभी जन सुनो, you are going away from God. आप प्रभु से दूर जा रहे You हो, go there, I'm going here. आप- You go away from आप God. प्रभु से दूर चले जाते When हो, you go away from और God, जब आप प्रभु से दूर चले जाते हो, you are denouncing Jesus Christ. आप यीशु मसीह को नकार रहे हो। Yeah. हाँ, जेवढ्यांदा तुम्ही जगाच्या मागे जाता, तुम्ही येशूला नाकारत असता लक्षात ठेवा. जेवढ्यांदा तुम्ही जगाची नक्कल तुमच्या जीवनामध्ये करता, तुम्ही येशूला लाथडून निघून जात असता. आणि अशा लोकांना पुन्हा एकदा परत ख्रिस्तामध्ये आणणं अशक्य आहे. And that's why it is impossible to get such people back in God. और इसीलिए ऐसे लोगों को प्रभु में फिर ले आने के लिए असंभव है। The Bible, I read it once again. I read that verse once again, verses 4, 5 and 6. देखो उस वचन को मैं फिर एक बार पढ़ता हूं, वचन 4, 5 और 6। For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost. Come on. क्योंकि उन लोगों के लिए असंभव है, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। Yeah, those people who were once upon a time filled with the Holy Spirit. और वो लोग एक बार जो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, who prayed in tongues, और जो अन्य भाषा में दुआ करते थे, who walked in the power of God, जो परमेश्वर के सामर्थ में चलते थे, who would feel the power of the anointing of the Holy Ghost all over them when they lifted up their hands and prayed. और जब कभी वो उनके हाथों को उठाकर दुआ करते थे, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ को वो महसूस करते थे। Once these people leave the Lord and go away, जब एक बार जब ये लोग परमेश्वर को छोड़ के भटक जाते हैं, who have tasted the heavenly gift, जिन्होंने स्वर्गीय भेंट को चखा है, बोलो एक दूसरे को चखा है, उस वचन का स्वाद लिया है, बोलो उस वचन का स्वाद लिया है, उस अभिषेक का स्वाद लिया है, उस बोलो अभिषेक का स्वाद लिया है, बोलो बाजारे का उस अभिषेक का स्वाद लिया है, वचन का स्वाद लिया है, वचन का स्वाद लिया है। और अगर वो छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे लोगों को फिर से ले आना नामुमकिन है. That's why we run after you so much. और इसी वजह से हम आपके पीछे इतना भागते हैं। When you don't pray, जब आप दुआ नहीं करते, why do we call and tell you? हम बुलाकर आपको क्यों कहते आप हैं? फोन करके क्यों तुमको बोलते हैं दुआ कर? पागल है क्या हम लोग? हमको क्या पागल कुत्ते ने काटा है? हमारे पास क्या काम धंधा नहीं है? आप हमारे कौन लगते हो? मान ना पान, क्या जान ना मान, क्या है वो? मान ना पान, मैं तेरा मेहमान.
मान ना बनारसी पान मैं तेरा मेहमान। हा? क्या बोला? जानना पहचान मैं तेरा मेहमान। हाँ ऐसा है क्या? जानना पान कुछ भी बोलता हूं मैं। हाँ जानना पहचान मैं तेरा मेहमान। हम लोग ऐसे हैं तुम्हारे जिंदगी में। पास्टरला काय करायचं आमच्या जीवनाबद्दल? कशासारखे फोन करतात, कशासारखे मागे लागतात. अरे बाबा मागे का लागतो? कारण तुम्ही नरकात जाऊ नये म्हणून. आमेन. तुम्हाला काय करायचंय? मला काय करायचंय? मला काम दिलंय. मी तो चौकीदार नाहीये. आमेन. मी ओरिजिनल चौकीदार आहे. माझं काम आहे एक एक जीव जो दिलाय त्यांना स्वर्गात घेऊन जाणं. मग तुम्हाला हा चौकीदार आवडो का ना आवडो, तुमच्या शिव्या पृथ्वीवर खाईल, पण स्वर्गामध्ये माझा बाप मला पारितोषिक देईल. Come on! Tell your neighbor, this man doesn't care even if you hate him. Come on. और आपके बाजू वाले से कहो ये आदमी परवाह नहीं करता अगर आप उससे द्वेष करें तो भी. बोलो. ये आदमी परवाह नहीं करता अगर आपको वो पसंद है नहीं तो भी. Yeah, I don't care. हाँ मुझे परवाह नहीं. Because I have not come to serve the Lord to see what you feel about me. क्योंकि आप मेरे बारे में क्या महसूस करते हो इससे लेकर मैं परमेश्वर की सेवकाई करने नहीं आया हूं. Yeah. हाँ इसको मैं बहुत पहले डोंगरी में छोड़ चुका हूं. जब मैं बच्चा था ना, बच्चा 15 साल का, तभी मैंने ये छोड़ दिया है कि लोगों को कैसा लगता है मेरे बारे में. ये लॉर्ड ने मेरे को डोंगरी में ट्रेनिंग दी है. हर घर से जब मेरे को लोग हकालते थे ना, तभी मैं समझ गया था कुछ बड़े चीज के लिए मुझे परमेश्वर ने बनाया है. तब कुछ समझा नहीं, मैं नहीं था, लेकिन मैं बहुत रोता था. और एक बात मुझे बाद में समझ में आई कि लोगों का दिल रखने के लिए परमेश्वर ने मुझे नहीं बनाया. आमेन. आमेन. संदेश, अगर तुम्हाला काय वाटायचं ते वाटा. आमेन. बोलू की मैं बोलू? तुम्हाला काय वाटायचं ते वाटा. अद्रक, लसूण, मिरची, कांदा, खोबरं, पुदिना, अजून काय वाटतात? कोथिंबीर. पण वाईट नका वाटू. आमेन. हाँ आई डोंट केयर. हाँ मुझे परवाह नहीं. पीपल फील, लोगों को लगता है why is pastor always after us? पास्टर हमेशा हमारे पीछे क्यों लगे रहते हैं? Why? क्यों? Why is he telling get up and pray, get up and pray, get up and pray, get up and pray? वो हमेशा क्यों कहते हैं उठ और प्रार्थना करो, उठ और प्रार्थना करो, उठ और प्रार्थना करो, उठ और प्रार्थना करो? क्योंकि जब समय होते तेल जमा कर बाबा. आमेन. 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 बाद में आएगा तो दूल्हा बोलेगा मैं तेरे को पहचानता नहीं. आमेन. तब मेरी बहुत याद आएगी तुमको. सच्ची बोलता हूं, तब तुम्हारे सब बाल गिर जाएंगे. मैं फैक्ट बोलता हूं. तुमको कुछ नहीं लगेगा ये निकालने के लिए. मेरी बहुत याद आएगी दरवाजे के बाहर, स्वर्ग के दरवाजे के बाहर खड़े होके मेरी बहुत तुमको याद आएगी. और बोलेंगे पास्टर ने बोला था, वो आदमी सही था, वो टकला बहुत सही था. ए यीशु बचा रे. यीशु बोलेगा ये कौन चिल्ला रहे, फेंक दे नीचे. आमेन. शारोन, जब इसका सुना नहीं ना, देखो मेरा काम क्या है, मैं वॉचमैन हूं. बोले दूसरे को ये चौकीदार है. बोलो ये चौकीदार है. बोलो ये चौकीदार है. मैं ऐसा नहीं हूं कि जागते रहो, मेरे भरोसे मत रहो. मैं ऐसा नहीं है. मैं ऐसा है जागते रहो, कोई सोएगा नहीं, ध्यान में रखो. मैं ऐसा है. आमेन. People of God, परमेश्वर के लोगों, hear this everybody. ये सभी जन सुनो. If you go away from the life of the Lord, अगर आप प्रभु के जिंदगी से दूर चले जाओगे, tell your neighbor there is no return back. Come on. आपके बाजू वाले से कहो वहां से कोई लौट कर आ नहीं सकता. बोलो. वहां से कोई लौट कर आ नहीं सकता. घर वापसी नहीं होगी. बोलो. घर वापसी नहीं होगी. बोलो. घर वापसी नहीं होगी. Don't play with your souls. आपके जी के साथ आप मत खेलो. Amen. आमेन. क्या खेलने का ही खेलो, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, लेकिन जी के साथ मत खेलो. आमेन. Amen. आमेन. Now listen everybody. अब सभी जन सुनो.
So what does the Lord want us to do is, तो प्रभु क्या चाहता है कि हम करें वो ये है, Romans 12 and verse 2. रोमियो की पत्री इसका 12वां अध्याय वचन 2, Before we read that, और उसे पढ़ने से पहले listen everyone. सभी जन सुनो. The Bible, the Bible, listen. When does a wick get blackened? देखो एक बत्ती पूरी तरह से कब जल जाती है? नहीं, बत्ती कब काली हो जाती है? एक बत्ती काली कब हो जाती है? Listen. सुनो. When I'm in the Lord, जब मैं प्रभु में हूँ, and when I don't see, first of all, सबसे पहली बात, your life is that wick. आपकी जिंदगी ही वह बत्ती है. Yeah, your life is that wick. आपकी जिंदगी वो बत्ती है. बोलो बाजू वाले को, तेरी जिंदगी वो बत्ती है. बोलो, वो बत्ती है. तेरी जिंदगी वो बत्ती है. Now, अब when your life is that wick, जब हमारी जिंदगी वो बत्ती है, and if we let go the fire of the Holy Spirit, और अगर हम पवित्र आत्मा के अग्नि को छोड़ देते हैं, or start becoming low in Him, या फिर उसमें हम कम होने लगते हैं. how does this happen? ये कैसे होता है? Watch. देखो. Come here, Sitij. I'll give you a small demo here. यहाँ पर एक छोटे से कृति करके आपको दिखाता हूँ. Imagine this is the world. कल्पना करो कि ये दुनिया है. Go there. And I am you. और मैं आप हूँ. Now listen. अब सुनो. The fire of the Holy Spirit पवित्र आत्मा का जो अग्नि है, is directly proportional of how much the world is in my life. आपके जिंदगी में दुनिया कितनी है उसी के साथ जुड़ा हुआ है. कितने प्रमाण में है इसके साथ जुड़ा हुआ है. Yeah, repeat once again. आपके जिंदगी में दुनिया का प्रमाण कितना है इसके साथ जुड़ा हुआ है. Repeat once again. आपके जिंदगी में दुनिया का प्रमाण कितना है इसके साथ जुड़ा हुआ है. I repeat once again. मैं फिर एक बार दोहराता हूँ. Go there. The fire of the Holy Spirit पवित्र आत्मा का जो अग्नि है is directly proportional to the level of, or inversely proportional to the level of the world in my life. कि आपके जिंदगी में दुनिया का प्रमाण किस स्तर पर है इसके साथ वो जुड़ा हुआ है या फिर इस पर वो निर्भर है. Yeah. हाँ. That means more the world इसका मतलब यह है कि in me, जितना ज्यादा दुनिया मुझ में है, the less the fire of the Holy Ghost in me. उतना ही कम पवित्र आत्मा का अग्नि मुझ में होता है. I know you will agree with me. और मुझे पता है कि आप मेरे साथ सहमत होंगे. How many people find it difficult to pray? Come on. और कितने लोगों को मुश्किल होता है दुआ करने के लिए. Come on. चलो Be pramanik. चलो प्रामाणिक हो जाओ. Yeah. You know why? आपको पता है क्यों? Because the world क्योंकि ये दुनिया is in us. वो हम में है. Now listen, I've been through this. हाँ, मैं इसमें से गुजर चुका हूँ. Don't feel I'm very holy. देखो ये मत समझो कि मैं बहुत पवित्र हूँ. I've got two big initials. मेरे पास दो बड़े बड़े इनिशियल्स है. Yeah, initials. PP. Papi pastor. So don't relax. Don't feel bad. Okay. PP यानी पापी पास्टर यानी बुरा मत लगो, यानी बुरा मत समझ लो. Romans 12:2 declares. और रोमे की पत्री इसका 12वां अध्याय और वचन 2 घोषित करता है. It is a command. और ये एक आज्ञा है. Be not conformed to this world. और इस संसार के सदृश न बनो. I repeat once again. मैं फिर एक बात दोहराता हूँ. Be not conformed to this world. इस संसार के साथ सदृश न बनो. But this is a command. ये एक आज्ञा है. It is not an option. ये एक चुनाव नहीं. It is not spoken. This verse is not read like this, the way we read. देखो इस वचन को इस तरह पढ़ा नहीं जाता जैसे हम पढ़ते हैं. जैसे हमने पढ़ा. जैसे हमने पढ़ा है. How did I read it? देखो मैंने उसे कैसे पढ़ा है. And be not conformed to this world. और इस संसार के सदृश ना बनो. ऐसा इसको पढ़ा नहीं गया है. इसको पढ़ा ऐसा गया है. मैं आपको बताता हूँ कैसा पढ़ा गया है. Watch. Listen everybody. सुनो It is, सभी जन. and be not conformed. और इस संसार से सदृश ना बनाओ. It's a command. ये एक आज्ञा है. It's not told politely. And be not conformed. हाँ. ये बहुत ऐसे सौम्य तरीके से नहीं बताया गया. और इस संसार से सदृश ना बनो. हाँ. वाटल तो नको बनू. हाँ. पण वाटलं तर बन. ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. बोला बाजा लोग ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. It's a command. वो एक आज्ञा है. Be not conformed. इस संसार से सदृश ना बनाओ. That means you can't copy the world. इसका मतलब यह है कि आपकी दुनिया की नकल नहीं उतार सकते. Yeah. हाँ. You can't live the way the world lives. दुनिया जैसी जीती है वैसे आप नहीं जी सकते. You can't have the same dressing style as the world in your life. और दुनिया जैसे नट्ठे पट्टे करते हैं या फिर जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे ही तरीके से आप कपड़े
कपड़े नहीं पहन सकते। You can't have the same lifestyle the way the world lives. और दुनिया जिस जीवन शैली में जीती है वैसे आप जी नहीं सकते। You can't have the same kind of friends as the world has. जैसे दुनिया के पास दोस्त है वैसे दोस्त आपके पास नहीं रह सकते। You can't go to the addas where the world goes. और दुनिया जिस अड्डाओं में जाते हैं वहां पर आप नहीं जा सकते। You can't copy the lifestyle of the world in your life. और इस दुनिया की नकल आपके जिंदगी में आप नहीं उतार सकते। You cannot speak the way the world speaks, the same kind of language. I'm talking about bad communication. और जो भाषा दुनिया इस्तेमाल करती है यानी बुरे बुरे अल्फाज जो वो इस्तेमाल करते हैं वो आपके जिंदगी में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मी शिव्यान बद्दल बोलतोय. मैं गालियों के बारे में बता रहा हूं। जे घाण जे शिव्या घाणत असतात, जे शिव्या जग देतं तुम्ही नाही देऊ शकत. तुम्ही बिब्लिकल शिव्या देऊ शकतात. You fool. आप वचनों के जो गालियां है वो दे सकते हैं। तू मूर्ख। Even in the Bible, you can't call your own brother fool. बोमला. और बाइबल में भी आप खुद के भाई को मूर्ख नहीं कह सकते। बोमलो। कौन सी भाई? कौन सी भाई? भाई बोलना फिर भाई, मैं भाई सुना. हाँ. और बाइबल के हिसाब से आप आपके भाई को मूर्ख नहीं कह सकते। People of God, परमेश्वर के लोगों, you can't copy the world and its ways. और आप इस दुनिया की नकल और उसके मार्गों की नकल आप नहीं उतार सकते। Listen everybody. सभी जन सुनो। When I start compromising, getting the world in my life, जब मैं समझौता करने लगता हूँ और इस दुनिया को मेरे जिंदगी में ले आता हूँ, come here, fire of the Holy Spirit. When the world is miles away from me, जब ये दुनिया मुझसे कोसा दूर है, the fire of the Holy Ghost is full on power. उस वक्त पवित्र आत्मा का अग्नि मेरे में पूरी तरह से सामर्थ्य से भरा हुआ है। But the moment the world starts coming into my life, लेकिन जैसे ही दुनिया मेरे जिंदगी में आने लगते हैं, the fire of the Holy Ghost starts, going away पवित्र आत्मा का जो अग्नि है मुझसे दूर चले जाती है and start going low. और कम low, होने लगता है और कम होने लगता है और कम होने low, लगता है और कम होने low. लगता है। Am I talking to somebody here? Come क्या मैं on. किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूँ क्या? Amen. 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 Now people tell me, people ask me, अब लोग मुझसे पूछते हैं, मुझसे मांगते हैं, मुझे बताते मुझे हैं, बताते हैं, पास्टर आमची प्रार्थनेची वेळ ना पवित्र आत्मा येतच नाही. मला लवकर स्पर्श होत नाही. मुझे जल्दी पवित्र आत्मा छूता नहीं है. The Holy Ghost is not touching me immediately. पवित्र आत्मा मुझे तुरंत ही छूता नहीं है। I don't know why. मुझे नहीं पता क्यों। There is no anointing. अभिषेक है ही नहीं। Can I give you the solution? क्या मैं आपको उसका जवाब दे सकता हूँ? Can I give you the solution? क्या मैं आपको उसका जवाब दे सकता हूँ? Do you want it? क्या आपको वो चाहिए? Do you want it? क्या आपको वो चाहिए? I can't hear it. मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। हाँ? हाँ। Oh, people of God, is simple. ओ परमेश्वर के लोगों वो बड़ा आसान है। Simple. बहुत आसान है। Push the world away. दुनिया को दूर ढकेलो। And the Holy Ghost will come near me. Come और on. Thanks of God. परमेश्वर के संत Am I talking to somebody here? क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूँ क्या? कोई आमेन बोलेगा क्या? Saints, hear this everybody. संत गणों सभी जन इसे You सुनो। and I need to understand. आपको और मुझे समझना जरूरी है। My life will get black the more I have the world in me. और मेरी बत्ती मेरी जिंदगी जो है वो ज्यादा काला तब होगा जब इस दुनिया को मैं मेरे जिंदगी में ले आऊंगा। जितनी ज्यादा दुनिया मेरे जिंदगी में है उतनी मेरी बत्ती काली है. पवित्र आत्मा की अग्नि कम है. जितनी ज्यादा दुनिया मेरे से दूर है उतनी पवित्र आत्मा की अग्नि प्रज्वलंत है और मेरी बत्ती जल रही है. Saints of God, that is simple mathematics. और परमेश्वर के संत गणों ये आसान गणित है। Yeah, simple formula. और बहुत ही आसान सूत्र कुछ है। बड़ा ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है ये. कोई बोलेंगे पास्टर हम तो दुनिया हमारी जिंदगी में है ना, हम पवित्र छे. ये बोलना भी पाप है. आमीन। जो बोलता है मैं पवित्र हूं वो गया. ये बोलना है भाई मैं पवित्र नहीं हूं, उसके परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा, कृपा के द्वारा मैं पवित्र किया गया हूं. कम ऑन. The people
people of God. तो परमेश्वर के लोगों, Listen everybody. सभी जन सुनो. Listen, some people may say, oh, we are not copying the world. हाँ, कुछ लोग कहते हैं, ओ हम तो इस दुनिया की नकल नहीं उतार रहे हैं. Yeah, we are very good people. हम तो बड़े अच्छे लोग हैं. And we are very good. हाँ, हम बहुत अच्छे हैं. Very bad. बहुत बुरे. Very bad. बहुत बुरे. ऐसे लोगों के भी पवित्र आत्मा की अग्नि. Yeah. हाँ. इसलिए when the anointing session starts, इसलिए जब अभिषेक का सत्र शुरू हो जाता है, they are we need spectators. देखो हमें प्रेक्षकों की जरूरत है. Yeah. हाँ. कि पवित्र आत्मा काम कैसे कर रहा था. इसलिए हम कुछ लोगों को लेके आते देखने के लिए, क्योंकि अगर सब लोग अभिषेक में गिरेंगे तो देखेगा कौन. तो ऐसे लोगों की जरूरत है हमें जो देखेंगे. एक दूसरे को बोलो, इधर देखने के लिए मत आओ. बोलो, इधर देखने के लिए मत आओ. ऊपर से कोई देख रहा है. बोलो, ऊपर से कोई देख रहा है. हमें इधर भरने के लिए आ जाओ. कम ऑन, इधर भरने के लिए आ जाओ. आमेन, आमेन, come आमेन, on, give आमेन, the Lord आमेन. a So listen everybody, it is imperative that whenever you lift those hands up high, the Holy Ghost has to come. तो सभी जन सुनो, ये बहुत ही अनिवार्य है कि जब कभी आप आपके हाथों को ऊंचा उठाओ, उस वक्त पवित्र आत्मा आना ही चाहिए. Now listen, how does a Christian, a believer, control this world out of his life? तो एक मसीह इस दुनिया पर नियंत्रण कैसे रखता है कि वो उसके जिंदगी के बाहर ही रहेगा? या नहीं, इस दुनिया को अपने जिंदगी के बाहर कैसे रखेगा? इस चीज को वो नियंत्रित कैसे करेगा? Romans chapter 8 everybody, रोमे के पत्र इसका 8वां अध्याय and verse 13 onwards. और वचन 13 से आगे. This is how a believer trims his life. और इसी हिसाब से एक मसीह जो है अपनी जिंदगी को छांटता है. Amen. आमेन. Or trims his wick. या फिर अपने बत्ती को वो छांटता है. That is Romans 8 और वो है रोमे के पत्र 8वां अध्याय and verse 13 and 14. और वचन 13 और वचन 14. For if ye live after the flesh, ye shall die. क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे. चलो बोलो, बाजू वाले को, आपके बाजू वाले को नहीं मालूम है, बोलो कि अगर आप देह के वड़वड़ी अनुसार जियोगे, निश्चित मरोगे. या वो ये मौत नहीं, धरती का मौत नहीं, अनंत काल का मौत. या हाँ, बोलो फिर से एक बार, अगर आप शरीर के लालसाओं के अनुसार वड़वड़ी के अनुसार जियोगे, निश्चित मरोगे. Amen. आमेन. Further it says, आगे वो कहता है, but if ye through the Holy Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. लेकिन यदि पवित्र आत्मा के द्वारा देह के क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे. Now watch everybody. आप सभी जन ध्यान दो. Come here, flesh. इधर आ, देह. And here is the Holy Spirit. और यहाँ पर है पवित्र Come, आत्मा. Holy Spirit, come on the right hand, left hand side, flesh here. Watch everybody. सभी जन देखो. Now, अब some people feel, कुछ लोगों को लगता है, don't miss this point, is very, very important, okay? इस मुद्दे को मत गवा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. Now, this is the Holy Spirit by all respect. और पूरे सम्मान के साथ ये पवित्र आत्मा है. And he is your flesh. और वो आपका देह है. Now, अब आपके शरीर के लालसा है, वड़वड़ी है. Now watch. अब देखो, Some people feel, कुछ लोगों को लगता है, I will live आराम से. मैं आराम से जीऊंगा. I will not pray. मैं दुआ नहीं करूंगा. I will not read the word of God. मैं परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ूंगा. I will live anyhow. मैं कैसे भी जीऊंगा. Yeah. हाँ. And the Holy Ghost और पवित्र आत्मा will kill my flesh. मेरे देह के लालसाओं को मारेगा. जा, go, attack. मार उसको. ऐसा इधर फ्रेम में अंदर लेके आ. कहाँ बाथरूम में जा रहा है? वो जा रहा है. इधर मार उसको. ये गपा नीचे लगा उसको, नीचे झुका उसको. हाँ, दे दनादन. मैं मस्त चित्रेला है एकदम. मेरा पवित्र आत्मा काम कर रहा है उधर, मेरे देह को मार रहा है. मैं जा रहा हूं एंजॉयमेंट करने को.
मैं दुनिया में जिएगा, आजा दुनिया कमेल ये मारना तू क्या देख रहा है इधर? ये पवित्र आत्मा काम करना पूरा। ये दे दनादन, ये दे दनादन। दुनिया मार मार। हो गया काम खत्म हो गया। टेल योर नेबर, आपके बाजू वाले से कहो, पवित्र आत्मा ने सुपारी नहीं लिया है। बोलो, पवित्र आत्मा ने सुपारी नहीं लिया है। बोलो बाजू वाले को, पवित्र आत्मा ने सुपारी नहीं लिया है। तेरे लिए देह को मारेगा, तेरे लिए देह को मारेगा। आमीन। ये तुम सब गलत फैमिली में हो। मैंने क्या बोला? ये तुम सब गलत फैमिली में हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये तुम सब है ना गलत फैमिली में हो कि पवित्र आत्मा काम तमाम करेगा। जा रे, मैं जाके धमाल करेगा। ये दे देना दन। हाँ, हो गया क्या? आज के लिए मारा उसको, आज के लिए मार दिया। कल से वापिस आने का। ठीक है, आ जाओ इधर। हाँ। एक दूसरे को बोलो, ऐसा नहीं होता है। बोलो, ऐसा नहीं होता है। बोला यार, ऐसा नहीं होता है। I'll give you a small demo here. मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा कृति करके दिखाता हूँ। Come here. Imagine when I was in the world, कल्पना करो कि जब मैं इस दुनिया में था, I had a habit of a bondage of smoking cigarettes. और मुझ में एक आदत थी, एक बंदवाई थी कि मैं बार बार सिगरेट फूंकता था। And that's a fact. I did smoke. और ये सच्चाई है, मैं सिगरेट फूंकता था। I was a worst kind of chain smoker you can ever have. और मैं बहुत ही बुरा सिगरेट फूंकने वाला ऐसा व्यक्ति था जो एक के पीछे बार बार सिगरेट फूंकते रहता था। I used to finish the whole packet of Marlboro Red in 1 hour. और 1 घंटे में मालबोरो रेड, ये जो सिगरेट का पैकेट है, ये पूरा का पूरा मैं अकेला खत्म करता था। And it had become a habit for me. और वो मेरे लिए एक आदत बन चुकी थी। When I came in the Lord, जब मैं प्रभु में आया, it went in one shot. वो एक ही झटके में चला गया। Because of the power of the Holy Spirit. क्योंकि पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा वो But हुआ। I'll tell you what exactly I did. लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैंने वो क्या किया। See, the more I stay in the presence of the Holy Spirit, देखो, जितना ज्यादा मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहूंगा, that much more the Holy Ghost empowers me. उतना ही ज्यादा पवित्र आत्मा जो है मुझे सामर्थी बनाते रहता है। The more I pray, और जितना ज्यादा मैं दुआ करूंगा, listen everybody, सभी जन सुनो, the more I pray, जितना ज्यादा मैं दुआ करूंगा, the more I stay in His presence, जितना ज्यादा मैं उसके उपस्थिति में रहूंगा, I get empowered by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा मैं सामर्थी बन जाता हूँ। And what happens is, और क्या होता है वो ये, when this temptation of cigarette smoking comes before me, जब सिगरेट फूंकने का ये मोह मेरे सामने आता है। now watch everybody, अब सभी जन ध्यान से देखो, when I'm in my house, जब मैं मेरे घर में होता हूँ, who can tempt me to smoke a cigarette? वहां पर मुझे कौन मोहित कर सकता है सिगरेट फूंकने के लिए? 3 things. 3 चीजें। First, पहले the TV. टीवी, Second, दूसरा mobile. मोबाइल, And third, तीसरा my friends. मेरे दोस्त। Come on, talk to me somebody. चलो कोई तो मुझसे बात करो। Amen. आमीन। Now, अब if I am a praying believer, अगर मैं एक प्रार्थना करने वाला एक मसीह हूँ, weak, कमजोर, but praying, लेकिन दुआ कर रहा हूँ, will my TV be on? क्या मेरा टीवी चालू रहेगा? Come on, talk to me. Come on. चलो मुझसे बातें करो, चलो। कितने लोगों ने अपने लंग्स लाए साथ में? कितने लोगों ने अपने फेफड़े अपने साथ लाए हैं? लाए, लंग्स लाए। कितने लोगों ने लंग्स हाथ ऊपर करो? कितने लोगों ने जुबान लाया है? तो बोलो ना, मेरा टीवी चालू रहेगा क्या? जोर से। क्यों? क्योंकि मेरे घुटने चालू रहेंगे। आमीन। कोई जोर से आमीन बोलेगा आमीन। क्या? आमीन। Come on. Will my mobile be on? चलो, क्या मेरा मोबाइल चालू रहेगा? और ऐसे दुआ करने वाले बिलीवर के साथ कौन से दुनियाई दोस्त रिश्ता रखेंगे? आमीन। आमीन। हाँ?
जगाचे मित्र मैत्रिणी माझ्या बरोबर संबंध ठेवतील का की जो व्यक्ती प्रार्थनेसारखा असतो? बोला ना, नाही ठेवणार. जगाला येशू आवडत नाही आणि प्रार्थना पण आवडत नाही, लक्षात ठेवा. आमेन. जर का तुमच्या जगिक मित्र मैत्रिणी तुम्ही आवडतात म्हणजे तुम्ही प्रार्थनेत नाहीये. बजा टाली, कमान बजा 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 बजा. I repeat once again, अगर आपके दुनियाई दोस्तों को आप पसंद हो, इसका मतलब आप यीशु के उपस्थिति में बहुत कम रहते हो. सिंपल है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का. आमेन. आमेन. नाउ अब वॉच. देखो, So my TV is off, तो मेरा टीवी बंद है, my mobile is off, मेरा मोबाइल भी बंद है, my friends don't come to meet me, मेरे दोस्त तो मुझे मिलने नहीं but आते, I go out लेकिन मैं तो बाहर जाता हूँ ना. for office, for job, business, work, studies, whatever I go out. ऑफिस, काम के लिए, बिजनेस के लिए, पढ़ाई के लिए, किसी ना किसी चीज के लिए. Now I am in the train. अब मैं ट्रेन में हूँ. कदर 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 कदर. ये तेरा हाथ किधर पकड़ना, तू अपना फूक मारने में खड़ा है. कदर 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 कदर. तू भी हिल. तू कैसा कैसा लटक रहा है ऐसा. तू हिल. कदर 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 कदर. So now listen everybody. अब सभी जन सुनो, I am seeing him smoking. मैं उसे धूम्रपान धूम्रपान धूम्रपान. मैं उसे धूम्रपान करते हुए देख रहा हूँ. And that the temptation is rising now. और वो मोह जो अब है वो बढ़ रहा है. The fingers are moving. वो उंगलियां अब चल रही है. Yeah, the finger. I know what it's to smoke. I know. हाँ, मैं जानता हूँ कि धूम्रपान करना क्या है. Yeah, you know, so the fingers are smoking. The fingers are moving. और वो उंगलियां अभी हिल रही And है. I feel, tempted. और मुझे मोह हो रहा है. But listen, लेकिन सुनो, in the morning, I got up in the morning at 3 o'clock today. आज सवेरे मैं 3 बजे उठा था And I prayed for 6 hours. और मैंने 6 घंटे तक मैंने दुआ की है. Tell me one thing. मुझे एक चीज बताओ, The power of the Holy Ghost will be high or low in me. और मुझ में पवित्र आत्मा का सामर्थ ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? बोलो बोलो, ज्यादा कम रहेगा? ज्यादा. ज्यादा. Amen. आमेन. So when he smokes, तो जब ये धूम्रपान कर रहा है, immediately from inside, तुरंत ही अंदर से the Holy Ghost start praying through me. Come on, everybody. पवित्र आत्मा मेरे द्वारा दुआ करने लगेगा. चलो सभी जन, People of God, परमेश्वर के लोगों, and immediately और तुरंत ही this power of darkness ये जो अंधकार के ताकत है is trying to tempt me. जो मुझे मोहित करना चाह रहे In the हैं, name of Jesus, यीशु के नाम में gone. Poof. पुफ, वो चले जाएंगे And the victory is mine. और विजय मेरा है. Come on! Am I talking to somebody? क्या मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ क्या? Saints of God, परमेश्वर के संतगणों, everybody understand this. सभी जन ये समझ लो, The more I pray, और जितना ज्यादा मैं दुआ करता हूँ, the Holy Ghost has power over me. और पवित्र आत्मा मुझ पे सामर्थ्य बना रहता है. Amen. Amen. And the more I match the world, my past temptations come even before me. और अगर मेरे भूतकाल के मोह मेरे सामने भी आ जाए, जे तोंड करून लोकांना दाखव असं बघू दे लोकांना कसं तोंड आहे बघू. They come before me और वो अगर मेरे सामने भी आ जाए and go like that and come like that. और यहाँ से वहाँ से आते जाते रहेंगे, थोड़ा सा इधर असर होगा, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे में इतने बलशाली रहेगा कि मैं ऐसा उसको. आमेन आमेन आमेन. Saints of God, परमेश्वर के संत to गणों, understand this, तो ये समझ लो, you have to mortify the deeds of your flesh by the Holy Spirit. आपको इस शरीर के लालसाओं को पवित्र आत्मा के द्वारा मारना है. Amen. आमेन. पवित्र आत्मा के द्वारा बोलो. पवित्र आत्मा के द्वारा, बोलो. पवित्र आत्मा के द्वारा, खुद के बल पे नहीं. खुद के बल पर नहीं, बोला आवाज वाले को. खुद के बल पर नहीं. अगर मुझे सिगरेट का फूकने का अगर मोह हो रहा है तो मैं च्युइंगम खाऊंगा. कौन सा च्युइंगम से तुम्हारा सिगरेट फूटने वाला नहीं है. आमेन. कुछ महीनों के बाद वापिस आएगा, सिगरेट भी आएगा, च्युइंगम भी आएगा. उल्टा सिगरेट के बाद च्युइंगम खा के घर जाएंगे ताकि बीवी सूंघ न पाए. बीवी आप ब्लड हाउंड होती है, ब्लड हाउंड.
झूठ ना ले, झूठ ना ले. People of God, परमेश्वर के लोगों, no chewing gum can destroy the powers of darkness. और कोई भी च्युइंगम इस अंधकार के ताकतों को नाश नहीं कर सकता, Only the Holy Spirit. लेकिन पवित्र आत्मा ही. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Amen. The people of God, परमेश्वर के लोगों, modify the deeds of your flesh by the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा इस शरीर के क्रियाओं को मारो. अगर मेरा दुकान सिगरेट का उधर है तो पवित्र आत्मा को पूछो, मैं जाऊं क्या उधर? पवित्र आत्मा बोलेगा, ए बाबा तू जानता है ना तेरा मोह किधर है, क्यों जाता है उधर? जोर से आमीन तो बोलो. आमीन. नहीं, पवित्र आत्मा मैं जाऊंगा उधर, तू मेरे को कंट्रोल कर, मेरे को तो पीछे से खींच. नहीं आएगा पवित्र आत्मा खींचने को, काय को आता है? मेरे को खींच पीछे से. अगर तेरी इच्छा है कि मैं धूम्रपान नहीं करूं तो तू मुझे पीछे से खींचेगा. खींच मुझको, खींच. अरे खींचना, अरे खींचना रे, अरे खींचना. नहीं खींचेगा. उसने आदम को नहीं खींचा. बोलो बाजू वाले को, उसने आदम को नहीं खींचा. उसने आदम को नहीं खींचा. वो तेरे को क्या खींचेगा? वो तेरे को क्या खींचेगा? बोलो यार फिर से एक बार. उसने आदम को नहीं खींचा तो वो तुझको क्या खींचेगा? एक दूसरे को नहीं बोल रहे, बोलो यार, बोलो बोलो. उसने आदम को नहीं खींचा तो वो तुझको क्या खींचेगा? डू नॉट टेम्प्ट द लॉर्ड योर गॉड. और आपके प्रभु डू नॉट मसीह, टेस्ट द लॉर्ड योर गॉड. और आपके प्रभु की परीक्षा मत लो. देवाची परीक्षा घेऊ नका. देवा मला तू अडव. देव नाही अडवणार. देव बाप पण आहे, प्रियकर पण आहे आणि न्यायाधीश पण आहे. आमेन. तो न्याय करणार. तुला पवित्र आत्मा देऊ केला होता ना बाळा, मग कशाला गेला तरी पण त्या गल्लीमध्ये धूम्रपानाकडे, कशाला गेला त्या गुत्त्याजवळ? तुला माहिती होतं ना. Come on, am I talking to somebody here? Come on. चलो, क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूँ क्या? Pastor, pray for me so that my steps will not go there. पास्टर मेरे लिए दुआ करो ताकि मेरे कदम वहां पर नहीं जाएंगे. तू कदम वहां पर रख के आया है, ऐसा आया है तू. तेरे कदम उधर है. अभी नीचे उतरेगा, कदम ज्वाइन करेगा ऐसा और उधर जाएगा तुरंत. मेरे दुआ से ऐसा कुछ नहीं होने वाला. लोगों को लगता है, कम हियर, पीपल फील, लोगों को लगता है, कम, जैसा दुष्टात्मा निकलता है वैसे मेरी सारी, इधर देख रहे बाबा, अरे इधर, मैं जैसा पास्टर हाथ रखेंगे मेरे में जितने भी सारे ऐसा देह की वड़वड़ी है सब निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में. तुझ्या आत्मा जे काय सिगरेट फुकायचं जे काय दुष्टात्मा आहे, निघ. लगेच धुवा सगळं धूर निघाला बाहेर. दुष्टात्मे ऐकतात. बोला एकमेकाला, दुष्टात्मे ऐकतात. दुष्टात्मे ऐकतात. हा खरं, मी आता जे बोलणार आहे फार महत्वाचे. बोला एकमेकाला, दुष्टात्मे ऐकतात. बोला, दुष्टात्मे ऐकतात. ते आज्ञापालन करतात. बोला, ते आज्ञापालन करतात. माणूस नाही करत. माणूस नाही करत. या हा, खरंच लिहिणार तर खरं सांगतो मी, सगळ्यात भयानक आत्मा म्हणजे माणूस. मी सैतानाला बघितलं निघताना, लुसिफरला, पण माणूस पण मी टकला झालो तरी सुधारला नाही. I'm telling you the fact. मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं. या हाँ, मैं गंजा हो गया इधर, गंजा. नहीं ये शनावत अच्छे अच्छे दियाबल निकलते, गॉन. लेकिन इंसान को बोलो, अरे ये मत कर बाबा, तेरे यीशु मसीह के नाम में तो रिक्वेस्ट करता हूं, वो यस, ते गेला तेच. कम ऑन टॉप. Tell your neighbor, mortify the deeds of your flesh through the Holy Spirit. और आपके बाजू वाले से कहो, पवित्र आत्मा के द्वारा देह के क्रियाओं को मारो. बोलो,
पवित्र आत्मा के द्वारा देह के क्रियाओं को मारो। बोलो, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा देह के क्रियाओं को देह के क्रियाओं को मारो. मारो। Now I'm closing over here, everybody. अब यहाँ पर मैं बंद कर रहा हूँ सभी जन। Tell your neighbor, आपके बाजू वाले से कहो, don't fall asleep. सो मत जाना, बोलो, सो मत जाना, बोलो फिर से एक बार. सो मत जाना, You're not speaking the way I speak. सो मत जाना. सो मत जाना। इतना प्यार से क्यों बोल रहे हैं? सो मत जाना. ऐसा बोलेगा तो पहला सोएगा. सो मत जाना. हाँ. Don't fall asleep. सो मत जाना। Yeah. वो बोलने में जरा सा लगना चाहिए ना. सो मत जाना. ये कौन सा है उठने का तरीका है, उठाने का तरीका है? I remember my mom used to wake me up. मुझे याद आता है मेरी माँ मुझे उठाती थी. She used to be making chapatis in the kitchen. वो किचन में चपाती बनाती थी. And we used to be sleeping in the hall. और हम हॉल में सोते थे. There was a direct throughway from the kitchen to the hall. और किचन से लेकर हॉल तक सीधा सीधा एक रास्ता था, यानी सब कुछ दिखता था. दिखता था और आदमी भी जाता था और चीजें भी आती जाती थी, you know. So in the 5 o'clock in the morning she'll call up, she'll tell me, तो सवेरे 5 बजे वो मुझसे कहती थी, all right, Dad? This is the way she woke me up. और वो इस तरीके से मुझे उठाती थी. All right, not? Once. एक बार, Second time. All दूसरी right, not? दूसरी बार, Third time. तीसरी बार, One chappal will come flying. एक चप्पल उड़ते हुए 5 o'clock. 5 बजे. Thank you, mommy. I love you. थैंक यू मम्मी, मैं तुझसे प्यार करता हूँ. Yeah, today is Father's Day. आज फादर्स डे है. Many fathers don't do anything for their kids. और बहुत सारे पिता जो है उनके बच्चों के लिए कुछ भी नहीं करते. If you want to do something for your kids, अगर आप आपके बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो, parents, माता पिता, give them discipline in life. उन्हें उनके जिंदगी में अनुशासन दो. Yeah. आमेन. हाँ, My mom, मेरी माँ, let me tell you, मुझे आपको बताने दो, beyond 5 o'clock, I don't remember I have slept. और मुझे याद नहीं कि 5 बजे के परे मैं सोया हूँ. And holidays, और छुट्टियों के दिन maximum sleep allowed was 8 o'clock. ज्यादा से ज्यादा 8 बजे तक सो सकते हैं. 8 के बाद अगर नहीं उठा, खतरनाक लाटणं, चप्पल, स्किपिंग, झाडू, खराटा, जे मिसाईल जे काय घरात मिळेल दनादन अशी मारायची. अरा सगळं सुजलेलं असायचो. But I thank God for this mother. लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस माँ के लिए, Because of her, क्योंकि उसकी वजह से I'm able to stand and at least serve my Lord. कि मैं खड़ा हूँ और मैं परमेश्वर की सेवकाई तो कर पा रहा हूँ. Amen. 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 So people of तो God, परमेश्वर के लोगों, listen. सुनो, Tell your neighbor, don't sleep. आपके बाजू वाले से कहो सो मत जाना. Yeah. हाँ, Because next verse is very important. क्योंकि अगला वचन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. 1 Corinthians 11, everybody. पहले कुरिन्थियों की पत्री इसका 11वां अध्याय And verse 31. I'm closing over here now. और वचन 31, और यहाँ पर मैं बंद कर रहा We're हूँ. going to go into the anointing session. और उसके बाद हम अभिषेक के सत्र में जाने 1 वाले हैं. Corinthians 11 पहले कुरिन्थियों की पत्री इसका 11वां अध्याय and verse 31. और वचन 31. For if we would judge ourselves, we should not be judged. यदि हम अपने आप का न्याय करते हैं तो हमारा न्याय न होगा. Amen. आमेन. Always judge your own self. हमेशा खुद की न्याय करो. खुद का न्याय करो. मी आज असं का केलं? मी आज देवाच्या वचनाचं उल्लंघन का केलं? आज मी पवित्र आत्म्याला खिन्न का केलं? कारण माझ्यामध्ये अशा अशा वळवळी आहेत. न्याय करा स्वतःचा. आमेन. मोठे निवडून मला वाजवलेला न्याय करा स्वतःचा. न्याय करा स्वतःचा. पुन्हा बोला. न्याय करा स्वतःचा. म्हणजे तुमचा न्याय होणार नाही. बोला. म्हणजे तुमचा न्याय होणार नाही. आमेन. जज युअर ओन सेल्फ. खुद का न्याय करो.
so that you shall not be judged. ताकि आपका न्याय न होगा। Why did I grieve the Holy Spirit today? मैंने पवित्र आत्मा को आज खिन्न क्यों किया? Why did I disobey the Holy Ghost today? मैंने आज पवित्र आत्मा का अवज्ञा क्यों की? Why did I disobey the word of God today? आज मैंने परमेश्वर के वचन का अवज्ञा क्यों किया है? Before the sun can go down, ये सूरज डूबने से पहले, before you sleep, आप सोने से पहले check up yourselves always. Every day make a habit of it. और ये आदत डाल दो कि खुद को जांच कर देख लो, खुद को तराशो। Why did I tell lies? मैंने आज झूठ क्यों बोला? Check it up. ये तराश कर देखो, जांच कर देखो, Check up your own self. खुद को जांच के देखो, So that ताकि when you will check up your own selves, जब आप खुद को जांचोगे you will improvise. आप सुधरोगे। आमेन, आमेन, आमेन। Amen. Don't shrug your sin under the pillow. देखो आपके पापों को उस तकिए के नीचे मत डालो। Yeah. हाँ, Don't do that. ऐसा मत करो, Because क्योंकि what you shrug under the pillow, जो आप तकिए के नीचे छुपाओगे God removes it from there और परमेश्वर उसे वहां से निकालता है and will produce it to you on the day of judgment. और न्याय के दिन आपके सामने ले आ खड़ा करेगा। कोई आमेन बोलेगा? आमेन। How many want to be judged by God on that day? और कितने लोग चाहते हैं कि न्याय के दिन परमेश्वर आपका न्याय करे? Anybody? No. इसलिए यहीं पर खुद का न्याय करो। आमेन। एक दूसरे को बोलो, बुरा लगता है लगने दो, बोलो बुरा लगता है लगने दो, बोलो एक दूसरे को, कमान। बुरा लगता है लगने दो। कोई बोलेगा मन में, लेकिन मेरे इमेज के बारे में क्या, मेरी इज्जत के बारे में क्या, लोग क्या बोलेंगे, लोकांना काय वाटेल, लोक काय म्हणतील माझ्याबद्दल, माझ्या इज्जतीचं काय। तुम्हाला मी रहस्य बोलू? कैन आई टेल यू अ सीक्रेट? क्या मैं एक रहस्य आपको बताऊं, राज आपको बताऊं? बताओ, राज। राज कितने लोग चाहते हैं मुंडी जाओ क्या, हाथ आप आमेन तो बोलो यार। आमेन। लिसन एवरीबॉडी, सभी जन सुनो, परमेश्वर आपके इज्जत को बचाने नहीं आया है, आपको बचाने आया है। आमेन। कोई चोर से आमेन। झाकली मूठ सव्वा लाखाची, झाकली मूठ सव्वा लाखाची। अरे मुठो काढली, खालून कळालंय, सगळ्यांना कळालंय। तू मूठ बंद करायच्या आधी खालून गळून सगळ्यांना कळालंय, झाकली मूठ सव्वा लाखाची, झाकली मूठ सव्वा लाखाची। क्या झाकली मूठ सव्वा लाखाची? कुछ लाख भी कुछ नहीं, पेट्रोल प्राइस बढ़ गया, वो लाख सब चले गए, 3 महीने में लाख चले गए तुम्हारे। फिर सिलेंडर कितने का है अभी? सिलेंडर की कितना कॉस्ट है? तू सिलेंडर पे खाना नहीं खाता है, फिर क्या चूल पिटाते तू? हाँ, गैस लाइन है, इसका गैस लाइन तेरे पास है। फिर सिलेंडर कितने का है? 1000 का आता है, कितना? 1000 ना, झाकली मूठ सव्वा लाखाची। अरे लाख गेले, सव्वा रुपये राहिले फक्त हातात। ते नीट उघडून बघ, गेले ते 2014 सुरू झालं ना, तेव्हापासून फक्त सव्वा राहिलाय। लाख कधी उडून गेले? झाकली मूठ सव्वा लाखाची, झाकली मूठ सव्वा लाखाची। काय सव्वा लाखाची? रिझल्ट दिसतो ना, बोला रिझल्ट दिसणार, रिझल्ट। रिझल्ट तर दिसतो ना। रिझल्टचं काय करायचं, कुठे मुठीत लपवायचं रिझल्ट? आमेन, कोई आमेन बोलो। आमेन। हा, आता 10वीचे परीक्षेचे रिझल्ट लागले, काय काय लोकांना, किती लोकांना 60% मिळाले, काय लोकांना 75 मिळाले। व्हॉट्स दॅट गर्ल्स, वेर दॅट ऋतुजा गॉट 71%, राईट? तू नक्की तूच होती का ती? हां, तू कॉपी केलं होतं? तू मॅच चेसला 71 कशी मिळाली तुला? कमाल आहे. गिव्ह द लॉर्ड अ मायटी हँड ऑफ प्रेज फॉर दिस वंडरफुल 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 गॉड ब्लेस यू ऋतुजा। परमेश्वर आप तुझे आशीष दे ऋतुजा। Yeah, she got 71%. उसे 71 मिला है, 71% मिला है। Amen. आमेन। Some people got 58, some people got 48, some people got 28. कुछ लोगों को 58, कुछ लोगों को 48 और कुछ लोगों को 28 मिला है। 48? 48? अच्छा, okay. Some people got only 8. कुछ लोगों को सिर्फ 8 मिला है। Yeah. हाँ, Some people got late. और कुछ लोग तो लेट हो गए। रिजल्ट दिखता है, बोलो बाजू वाले को, रिजल्ट दिखता है। रिजल्ट दिखता है। क्या तुम झाकली मूठ सव्वा लाखाची बोलोगे? बोलो। क्या तुम झाकली मुठ सव्वा लाखाची बोलोगे? बोलो यार। क्या तुम झाकली मुठ सव्वा लाखाची नो बोलोगे? नो नो, कोणाला कळू नको देऊ, कोणाला कळू, लपो 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 लपो। अरे रिझल्ट दिसणार आहे एक दिवशी। आमेन।
रिजल्ट में मालूम पड़ता है कि कितना दूध है और कितना पानी है. आमेन. आमेन, आमेन. तो क्या करणे काय, माझी इज्जत वाचवायची, माझी. स्वतःचा न्याय कर. बोला एकमेकाला, स्वतःचा न्याय कर. स्वतःचा न्याय कर. तुझ्या बत्तीला कातरून काढ. बोला, तुझ्या बत्तीला कातरून काढ. बोलो. तुझ्या बत्तीला कातरून काढ. तुम्हारे दिए को, तुम्हारे बत्ती को, उसको छाटो. बोलो, तुम्हारे बत्ती को छाटो. बोलो. तुम्हारे बत्ती को छाटो. हाँ, खुद को परमेश्वर के सामने खोल दो. ओपन योरसेल्फ बिफोर द लॉर्ड खुद को सब परमेश्वर के सामने खोल दो. एंड टेल द लॉर्ड, परमेश्वर से कहो, लॉर्ड प्रभु हेल्प मी ट्रिम माय लाइफ. मुझे मदद कर कि मैं मेरे जिंदगी को छाटूं. कोई आमेन बोलेगा क्या? आमेन. Saints of God, परमेश्वर के संतगणों, how many love yourselves? Come on. कितने लोग खुद से प्यार करते हैं? Show me your hands. चलो आपके हाथ में से दिखाओ. How many love yourselves? कितने लोग खुद से प्यार करते हैं? Amen. आमेन. If you love yourself, अगर आप खुद से प्यार करते हो take the scissor of the Holy Spirit तो पवित्र आत्मा को जो कैंची है वो लो and start trimming your life. और खुद के जिंदगी को छाटने लगो. Amen. आमेन. One by one, एक एक करके start catching all those areas you know where you are disobedient. वो सारे विभागों को पकड़ लो जहां पर आप जानते हो कि आप वहां पर अवज्ञा करते हो. Saints of God, and परमेश्वर के start संतगणों, dealing with those areas. और उस विभागों पर काम करना शुरू करो. Today, आज I'm going to pray for you. मैं आपके लिए दुआ करने वाला If you हूं. really want to, get yourself cleaned up. अगर आप सचमुच चाहते हो कि आप अंदर से साफ हो जाएं, If you really want yourselves to be, made clear. और आप सचमुच चाहते हो कि आप अंदर से पूरी तरह से साफ हो जाएं, People of God, परमेश्वर के लोगों, if you really want the help of the Holy Ghost that to trim your wicks, अगर आप सचमुच चाहते हो कि पवित्र आत्मा आपको मदद करे कि वो आपके बत्ती को छाटे, then saints, तो संतगणों, I'm going to release the anointing right now. इस वक्त मैं वो अभिषेक आप पर खुला I'm करने going to वाला open up the altars. हूं. और मैं आप इस वक्त सामने का जो जगह है, जो वेदी है, मैं खोलता हूँ. And this moment, और इस वक्त को when I'll give an altar call, जब मैं आपको बुलाऊंगा, come forward आगे आओ and tell the Lord, और प्रभु से कहो, help me trim up, Lord. हे प्रभु मुझे मदद कर खुद को छाटने के लिए. Amen. आमीन. Let's have it. Come on, everybody, eyes closed and hands